Good morning, children. Our today's topic is limiting reagent or reactant. Let us see and try to understand what are limiting reagent. I hope this is visible. Quite often, one of the reactant present in the larger amount than the other as required according to the balanced equation. The amount of the product formed then depends upon the reactants which has reacted completely. This reactant is called the limiting reagent or limiting reactant. The reactant which is not consumed completely in the reaction is called excess reagent or as the excess of this reactant is left unreacted. इसका मतलब देखो, हम किसी इक्वेशन में जब दो चीज़ें लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन H2 and O2 गिविंग यू H2O and let's balance this 2H2O giving 2H2 plus O2 gives 2H2O. अब यहाँ पे हमारे पास में दो रिएजेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग वाटर. अब क्या हो रहा है कि इन दोनों में से एक रिएजेंट जो होगा वो लिमिटिंग होता है और दूसरा रिएजेंट जो होता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है. लिमिटिंग LR लिखेंगे और एक्सेस रिएजेंट को हम ER लिखेंगे. अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं कि जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएं, जो पहले कंज्यूम हो जाएं, और दूसरा अनरिएक्टेड बच जाता है. जो अनरिएक्टेड बच जाता है उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, और जो पहले यूज्ड अप हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस. वी आर हैविंग इन दिस क्वेश्चन, और लेट्स सी है, द रिएक्शन इज 2H2 plus O2 giving you 2H2O. Okay, now the stoichiometry of the reaction says that 2 volume of this combining with 1 volume of this giving you 2 volume of water, or you can say 2 moles of this combining with 1 mole of this giving you 2 mole of water. Now if I have 100 moles or 100 molecules of water, hydrogen, and 100 of oxygen, so how many water molecules will be formed? आप देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा वो हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, मतलब हाइड्रोजन के जितने मोल्स हैं वही वाटर बना रहा है. वाटर में ऑक्सीजन जो है वो हाफ यूज़ हो रहा है. सो 100 मोल ऑफ H2O बनेगा. Now if 2 is combining with 1, then 100 will combine with 50. So out of this 50 will be remaining unreacted. 100 will react and form water and 50 will remain unreacted. So this will be completely exhausted, whereas in this इतना जो है unreacted बच जाएगा. तो इसको हम limiting reagent बोलेंगे, while this will be called excess reagent. तो इसी तरह से इन एनी रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना वाटर बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, not on the amount of oxygen, because if hydrogen is consumed, so water will no more be formed. अब इस केस में आप देख सकते हैं कि still we have oxygen molecules, 50 molecules of oxygen are left, but water cannot be formed as one of the reagent is being exhausted. So वो reagent जिससे हमारा प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिसाइड होती है एंड on which the amount of the product depends is called the limiting reagent. It get consumed first, and the excess reagent is the reagent which remain unreacted. Okay, so this is what limiting reagent is. Now I'll be telling you how to solve the question in this. Let's see a question. Three gram of hydrogen react with
29 gram of oxygen to form H2O. First is, which is LR? LR means limiting reagent. Second is, calculate the maximum amount of H2O that can be formed. इस कंडीशन में हम कितना H2O बना सकते हैं, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. एंड द थर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. और अब हमें वो भी निकालना है, द रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड. ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई इनमें से LR क्या है. दूसरा आपको निकालना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू हैव 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. एंड ऑल्सो you have to calculate which is the excess reagent and how much amount of excess reagent will be left or unreacted. So first of all, write the balanced chemical equation. H2, 2H2 plus O2 gives 2H2O. Okay. Now the mass of hydrogen is 1. So 1 into 2 is 2. 2 into 2, and oxygen mass is 32. And water is 18. So it is 4 gram, it is 32 gram, and it is 36 gram. So basically 4 gram of hydrogen is combining with 32 gram of oxygen and giving 36 gram of water. Now you know that 4 gram of hydrogen gives, react with 32 gram of oxygen. 4 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen. So क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे दिया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में देखो दिया 3 ग्राम, तो हम 3 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे. 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, यूनिटरी मेथड लेंगे, 32/4 इंटू 3, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेशन में आ जाएगा 23 ग्राम. ठीक है. सो अब आप ये देखो कि वी नीड 23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अप्रॉक्सीमेशन में लिख रही हूँ. ठीक है, 23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ऑल्दो वी हैव गॉट इज क्वेश्चन में देखेंगे 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हमें चाहिए 23 एंड वी हैव गॉट 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सो जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास में है. दैट मीन्स ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट. ठीक है, अब वाई एक्सेस आई एम सेइंग अगेन, ये जो कैलकुलेशन से हमें नीड है 23 ग्राम की, एंड वी हैव गॉट 29 ग्राम इन द क्वेश्चन. सो बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज़ द एक्सेस रिएजेंट. इफ़ ऑक्सीजन इज़ द एक्सेस रिएजेंट देन हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट.
hydrogen is the limiting reagent. Okay, now पहला पार्ट इसका हमने सॉल्व कर लिया. द फर्स्ट पार्ट वी हैव सॉल्व्ड इज विच इज़ द LR. तो LR हमने निकाल लिया, हाइड्रोजन इज LR. और इसको हमने इनडायरेक्ट वे में निकाला, मतलब हमने ये प्रूव किया दैट ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएजेंट. सो इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एक्सेस, द अदर वन विल बी लिमिटिंग. इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, लाइक इन दिस आई हैव डन फॉर हाइड्रोजन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मतलब हाइड्रोजन अगर मेरे पास में 4 ग्राम है, देन हाउ मच ऑक्सीजन इज reacting with it, and if I have 3 gram of hydrogen, then how much oxygen is needed. आप इसका उल्टा भी कर सकते हो. You can also solve it for like 32 gram reacts with 4 gram, so 29 gram will react with how many gram of hydrogen. In that case you may find that हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है जबकि हमारे पास हाइड्रोजन का कंटेंट कम है. तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो. एज आई हैव डन फॉर हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यू कैन टेक आउट ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. ठीक है. और उस केस में जैसे यहाँ आपको एक्सेस में मिल रहा है कि हमें जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो इन दैट केस यू विल गेट इट रिवर्स. हाइड्रोजन यू विल बी गेटिंग इज मोर, बट द हाइड्रोजन अवेलेबल टू बी यू विल बी लेस. So first part is being solved. Second is calculate the maximum amount of water that can be formed. So again you can write the equation 2H2 plus O2 giving 2H2O. Now इसका 4 ग्राम, इसका 36 ग्राम देता है, तो इसका 3 ग्राम ये कितना देगा. सिंपल यूनिटरी लगाएंगे. क्यों मैं इसके रेस्पेक्ट पे ले रही हूँ, वाई नॉट विथ रेस्पेक्ट विथ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑलवेज जैसा मैंने आपको समझाया LR के ही रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट निकाला जाता है. बिकॉज इफ़ LR इज़ नॉट देयर, LR पहले ख़त्म होता है, तो इफ़ LR विल नॉट बी देयर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल नॉट बी टेकिंग प्लेस. ये कितना भी अनरिएक्टेड बच जाए उसका कोई यूज़ नहीं है. ठीक है. सो लेट्स टेक द यूनिटरी मेथड. 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 36 gram water, so 3 gram will give 36 upon 4 into 3, so it will come out to be around 27 grams. ठीक है. इतना वाटर बनेगा of H2O. Now the third part is, this was the second part. थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन में. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. ओके. तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो जो अनरिएक्टेड बचता है वो तो एक्सेस रिएजेंट ही होता है. एक्सेस रिएजेंट इज ऑक्सीजन. सो वी नीड 23 gram of oxygen. As we have done the solution here, we need 23 gram of oxygen. Oh sorry, 24 gram of oxygen, while we have got 29 gram of oxygen. हमें 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला है. यहाँ देखो 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला है, जबकि हमें 24 ग्राम की नीड थी. ओके. सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू 29 minus 24, so that is 5 gram. Okay. So like this also you can solve. अब जैसे ये मैंने किया, this is in terms of masses, grams. You may find the questions जिसमें moles के terms में भी इसको solve किया जाता है. You can do it in terms of moles also. I'll send you a pic of a question in which it is solved in terms of moles. Always remember, limiting reagent both the ways can be solved. आप जैसे यहाँ पे मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, आप यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हो. मैंने हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को निकाला है, आप ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को निकालोगे. यू जस्ट हैव टू सी दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ मच यू हैव गॉट. वहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच इज़ द एक्सेस रिएजेंट. सो दिस वे वी कैन डू द लिमिटिंग रिएजेंट.